Good morning, students. I, Kanishka Kumar Dasa, welcome you to your favorite English class. Today, we are going to discuss about simple present, the first form of present tense. First of all, we'll discuss how can we write a sentence using simple present form of the verb. प्रथमे आमे आलोचना करिबा केमिति verb रो simple present form व्यवहार करी सेंटेंस गठन करिबा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे verb का simple present form यूज करके सेंटेंस तैयार किया जाए। प्रथमे आमरा डिस्कस करबो কেমন ভার্বের সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করে আমরা সেন্টেন্স লিখব। Using simple present form of the verb, we may create 4 types of sentences. First one, affirmative declarative sentence. Affirmative declarative sentence. ये जो सेंटेंस ये होची एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस हाँ वाचक वाक्य। ये हाँ वाचक वाक्य आमे केमिति प्रस्तुत करिबा ना प्रथमे पहले वी हैव टू सप्लाई ए सब्जेक्ट। প্রথমে আমাদেরকে একটা সাবজেক্ট দিতে হবে। how to supply a subject, what will be the subject? Now students, a subject may be a noun phrase or a pronoun phrase or a gerund or 2 plus verb or there or it. These may be the subjects. এই সব সাবজেক্ট ହେଇଥାନ୍ତି। ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স ର এই মানে সাবজেক্ট ହେଇଥାନ୍ତି। तो if you are viewing my channel, viewing my class for the first time, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को व्यू कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उसको ढेर सारे शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीजों को, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं पिला माने এই जो सब्जेक्ट हुए এইগুলা को তুমি যদি জানি দিব তোমরা যদি জেনে নেবে যে কিভাবে এইগুলো সাবজেক্ট পজিশনে বসে তাহলে কিন্তু তোমাদের কি সহজ হবে একটা ডিক্লারেটিভ সিম্পল সেন্টেন্স লেখার জন্য। তাহলে আমি প্রথমে নাউন ফ্রেজের ব্যাপারে বলি যে একটা নাউন ফ্রেজ এইটাকে কিভাবে তৈরি করা হয় না একটা নাউন ফ্রেজের শেষে গোটিয়ে নাউন ফ্রেজের শেষে एक नाउन फ्रेज के अंत में एक हेड नाउन बैठता है। हेड नाउन जैसे हम कहते हैं कि सपोज काउ इज ए नाउन। सो हाउ टू मेक इट ए नाउन फ्रेज, कैसे हम लोग एक
इसको नाउन फ्रेज करेंगे ना। इससे पहले अगर हम लिख देते हैं दी, तो दी काउ इज ए नाउन फ्रेज, बिकॉज काउ इज ए नाउन, दी इज एन आर्टिकल. You have to understand that before a head noun, cow is the head noun. Before a head noun, what are the components we place here? We place here from the very beginning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके हम लोग बैठाते हैं. এমন আমরা একটা নাউন ফ্রেজ তৈরি করি. नंबर 1 हम लोग आर्टिकल्स को बैठाते हैं. आर्टिकल्स ए एन डी, दीज आर द आर्टिकल्स. ए एन और दी, दीज आर द आर्टिकल्स. These articles may be placed at the beginning of a noun phrase. जैसे हम लोग लिखे हैं दी काउ, যেমন আমরা দি কাউ লিখেছি, তো দি হচ্ছে একটা আর্টিকল. যেମିତି ଆମେ দি কাউ লেখিছে, দি ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ. ତ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ଲସ୍ ହେଡ୍ ନାउନ୍, ये both these two have made a noun phrase. এই মানে নাউন ফ্রেজ গঠন করছেন. তো দি কাউ is the subject. We may write a banana or bananas like this. And if a pronoun will be the subject, if a pronoun will be the subject, then we may place a pronoun, only one pronoun, or with it we mix something. Like noun phrase, pronoun phrase is created. Noun phrase जैसा क्रिएट किया जाता है, प्रोनाउन फ्रेज भी क्रिएट किया जाता है. तो नाउन फ्रेज के सेकेंड कंपोनेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से जो द्वितीय होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है ना. यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव बैठता है. डिमोन्स्ट्रेटिव क्या है? दिस दैट दिस दोस. अगर वो सेंटेंस में है तो वो बैठेगा. पॉजेसिव्स 3 नंबर में, नंबर 3 में पॉजेसिव्स बैठ सकता है. माई, आवर, हीज, हर, देयर, दीज आर पॉजेसिव्स. नंबर 4 में ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये बैठता है. 5th में कार्डिनल्स, कार्डिनल्स बैठ सकता है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट क्या बैठ सकता है ना, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या है ना, मच, ए लिटिल, लिटिल, दी लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल दीज आर क्वांटिफायर्स. नेक्स्ट क्या बैठता है? क्लासिफायर्स. ईच, एवरी, ये सब क्लासिफायर्स होता है. नेक्स्ट क्या बैठता है? एडजेक्टिव अगर है. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक नाउन के लिए बैठता है. नाउन को अच्छा से समझा देता है एक एडजेक्टिव.
मैं जाते जाते एक कैट को देख लिया। तो कैट है नाउन। वो कैट के बारे में अगर मैं कुछ शब्द बोलूंगा, जैसे कैसा कैट ना, ब्लैक कैट, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव। कैसा कैट ना, व्हाइट कैट, व्हाइट हो गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव अगर है हेड नाउन के जस्ट पहले से हम लोग बैठाएंगे, तो ऐसे नाउन फ्रेज तैयार करेंगे। ये नाउन फ्रेज एक सब्जेक्ट हो गया। अगर कुछ शब्द ये आर्टिकल्स के पहले है तो उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइनर्स, प्री मॉडिफायर्स। उसके बाद कुछ है, अगर हेड नाउन के बाद कुछ है, वो भी होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। तो ऐसे करके एक सब्जेक्ट हम लोग तैयार करते हैं। अगर नाउन फ्रेज नहीं है, प्रोनाउन फ्रेज को बैठाना है, तो कैसे करेंगे, कैसे बैठाएंगे? जदि नाउन फ्रेज नहीं, आमको प्रोनाउन फ्रेज बा प्रोनाउन लिखा पड़ुची, तो प्रोनाउन को आम केमिति लिखिबा? ये सारे प्रोनाउंस का लिस्ट है। ये सारे प्रोनाउंस का लिस्ट है। ये टेबल को आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जैसे देखिए कैसे हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये है नाउन, सब्जेक्ट जैसा काम करता है। ये है पर्सन्स, ये है सिंगुलर नंबर, ये है प्लूरल नंबर। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी और ईट। थर्ड पर्सन प्लूरल दे। अगर ये सारे सब्जेक्ट जैसा काम करता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्ट वाला प्रोनाउंस हैं। These act as subjects of a sentence. এগুলো সব সাবজেক্টের মতো একটা সেন্টেন্সে কাজ করে। আই, উই, ইউ, হি, সি, ইট, দে। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। You have to memorize only this one area. That is third person singular. He, she, it. Clear? The first person now will make sentences using all these pronouns first. जैसे हमारा पहला सेंटेंस होगा आई प्ले, मुंह खेले, आई प्ले। मैं खेलता हूं, तो आई प्ले, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, एंड द वर्ब इज in simple present form. How did you know? Guess. Play is the only verb here. Play यहाँ
ओनली वर्ब है, एक ही वर्ब है। तो अगर एक ही वर्ब है तो ये सिंपल है, और अगर ये वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, आप लोगों को पहले बता दूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स है, 5 फॉर्म्स। फर्स्ट वन प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड वन एस और ईएस फॉर्म, थर्ड वन आईएनजी फॉर्म, फोर्थ वन पास्ट फॉर्म, एंड फिफ्थ वन पास्ट participle form. We need only first one and second one, present or S or ES form. These two forms of the main verb, okay, is used in simple present forms. First one and second one. Suppose you take to go verb, then to go, the present form is go, S or ES form is goes. Clear? How did you know that S or ES form is goes, G-O-E-S? Goes. Now for that, you have to memorize. आपको मेमोरी में डालना होगा कि कुछ भाव ऐसे हैं, आपको याद रखना है। यू हैव टू कीप इट इन मेमोरी। जिन भाव्स एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जिनका लास्ट का जो इनिशियल्स है वो अगर है तो वो लोग ईएस लगाते हैं लास्ट में। जैसे सपोज टेक फर्स्ट एस एस, जैसे मिस, MISS, SS is there, so this verb will take ES, message. The pronunciation will be message, misses, not misses, message. SH लगाकर अगर एंड हो रहा है, जैसे रश, ES will be added at the end. रसीज। ऐसे वाच एक भाव है, WATCH, C, ending in CH. It will also take ES. Okay? And और कुछ भाव्स है जो जिसका लास्ट का इनिशियल वो है Y and followed by consonant, followed by a consonant. Okay, they change to Y changes to I and ES is added. Clear? जैसे cry, CRY, Y is the last initial. So while when it will take ES or S, how it changes? Now Y will be striked out. Y को यहां से भगा दिया जाएगा और IES will be added
जैसे CRIES, सी क्राइस। ऐसे हम लोग ES ऐड करते हैं वर्ब के साथ। तो कहां प्रेजेंट फॉर्म लगता है, कहां S और ES लगता है ना। अगर हम लोग सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। अगर ये फर्स्ट पर्सन में है ये सब्जेक्ट जैसे आई, तो यहां एस और एस इज नॉट एडेड, आर नॉट एडेड। अगर ये ही हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो ये प्लेज हो जाएगा, एस प्लेज। सी प्लेज, इट प्लेज। बाकी सारे जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का लाइन है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो ये प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। अगर वी लिखेंगे तो वी प्ले, ओके। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर डालेंगे सब्जेक्ट के जो सेल में, तो ये एस और एस ये वर्ब लेंगे। तो कहां एस लेंगे, कहां एस लेंगे, मैंने बता चुका हूं कि अगर वर्ब का जो अंत में, ओके, एस एस, एस एच, सी एच, ओके, ओ एक्स, ये सब रहता है, तो वर्ब ES ले लेता है, ओके, और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है इज। क्लियर? और अगर वर्ब is ended with the initial y, तो y changes into IES। क्लियर? जैसे स्टडी, स्टडीज, ट्राई, ट्राइज। प्लीज कीप इट इन योर मेमोरी, ओके। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइज, UPY, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइज। Y will be changed to IES. Clear? So, first person, if the subject is in first person, then verb is in present tense, in simple present form. If the subject is in third person, then the verb takes S or ES. ओके, बाकी सारे टेक्स एस, ओके। सो ही प्लेज, सी प्लेज। अगर ये भाव लिया जाए, ही क्राइज, सी क्राइज, इट क्राइज, बट दे क्राई, वी क्राई, ओके। क्राई मीन्स Guess. कांतिबा, ओके। रोना, if we take do verb, then we do, I do, he does, she does, it does, okay. You have to place the verb like this. They do, you do,
likewise. Okay, so I think you understood this. कहाँ एस लगेगा और यस लगेगा और कहाँ प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब लगेगा, और यहाँ जो भाव लग रहा है एठी जो भाव लागुची एखाने जे भाव लागছে এই भाव ये एक ही रहेगा, दो नहीं होगा। ये है एफर्मेटिव फॉर्म, एफर्मेटिव फॉर्म of declarative simple sentence. Clear? This is the affirmative of declarative simple sentence, and the pattern is SV. We are discussing about the SV pattern of the sentences. I think you better understand. अगर आपको ज्यादा से ज्यादा समझना है ये सिंपल प्रेजेंट के बारे में तो मेरे साथ जुड़े रहिए। यू प्लीज कीप इन टच विथ मी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन मेक यू better understand about the pros and cons of English grammar. In the next video, I'll teach you the use of simple present. तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को, मेरा जो वीडियोस हैं उसको बार बार देख लीजिए। यू प्लीज वॉच many more times, okay, and I think you will be master in English speaking and writing. Thank you very much for watching my channel.